Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So this is the video tutorial related with the cyber security attacks and how to prevent with these attacks like threat prevention and malicious attack and denial of services. So detailed video of the virus related and its types available on this channel, and link available into the description box, so you will check it out and after that you will enter into that part. So what is threat? The threat is the computer system. It's a victim of virus, bomb, hacking and type of cybersecurity attacks, the malicious attacks on your devices, on your laptops, notebooks, computers, mobile phones, where the globalization all over the world, on the web browsers, on the operating system, and the system may crash and the sensitive data may be stolen and misused on the era of the globalization. So who may do it? It is the hacker who seeks your weaknesses on the computer system and on the computer network when you share the things on the global area or on the various malicious programmers activities like different application programs. When you have excellent program skills and design a bug or error which gets embedded into your computer, in your personal computer, and it cause for the malfunction. When you think about that used application of yours, any social application of yours, taking allow access of your contacts, details, videos, audios, and all fames, and give to you the free tickets like ransom money of you will enter the 650 rupees and it will be doubled within the 10 minutes, and you will spend 650, and after that the person said to you, spend some more money, you will deduct from your account more money. If he or she will demand for the money 1,000 rupees more, then you spend more because of the main greedy things. So what type of infections threat having into the virus related structures? There are many type of infections like program counter performances and functionalities. So the major infection is the virus, and the virus is a small piece of software that attach themselves, means it's a self-replicating program that particularly attend with the malware and the adware and the spyware programs. Reproduce ability means कि ये अपनी ही फाइल्स को ना डबल करता जाता है. तो आपको इससे रिलेटेड अगर वीडियो देखनी है तो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हो. उसमें सारी बात वायरस की गई है. अब ट्रू वायरस जो है वो एक कंप्यूटर से एग्जीक्यूटेबल कोड को उठाता है और फिर जिसको आप फाइल भेजते जाते हो वो इंक्रीज होता जाता है और स्प्रेड होता जाता है. इस तरह से वो करप्ट होती जाती हैं फाइल्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स टारगेट हो जाते हैं. अब बात करते हैं कि वॉर्म क्या होता है. वॉर्म इज ऑल्सो ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम. अब देखिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम उसको भी बोलते हैं कि वायरस भी अपनी अपनी फाइल को डुप्लीकेसी करता है. मेजर डिफरेंस है वायरस और वॉर्म में वो क्या है कि वॉर्म कभी भी अपनी जो अटैच फाइल होती है उसको नहीं बढ़ाता. मीन्स आपने अगर डाउनलोड की है ऐसी फाइल जिसमें वायरस अटैक था, तो वायरस अगर है तो वो अपनी फाइल को डुप्लीकेट करता जाता है. बट अगर उसमें वॉर्म था, वॉर्म उससे डुप्लीकेट फाइल नहीं बनाती, वॉर्म ट्रांसफर नहीं करती फाइल को, वॉर्म उसी सिस्टम पे अटैक करती है जहां पे डाउनलोड हुई होती है. बट जो वायरस है वो वहां अटैक करता है जहां डाउनलोड हुई. आपने किसी को फाइल दी है, उसका भी सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाएगा, मल्टीपल पार्ट इन्फेक्टेड होंगे. सो वॉर्म जो है स्प्रेड होता है क्रॉस द नेटवर्क्स ड्यू टू पुअर सिक्योरिटी. मीन्स की अगर आपने वो शेयर की है नेटवर्क पे, ग्रुप में किसी में शेयर की है तो हो सकती है, अदरवाइज ऐसा कोई भी प्रॉब्लम पार्ट उसमें नहीं होता. सो वॉर्म के अंदर जो वायरस होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, क्योंकि वॉर्म का जो कैटेगराइज फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है वायरस से. कि वॉर्म में सेल्फ रेप्लिकेशन फैसिलिटीज जरूर हैं, अवेलेबल है, हम ये नहीं कहते कि अवेलेबल नहीं है, बट उसके अंदर जो फैसिलिटीज का काम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. वो डिफरेंट पार्ट के ऊपर प्ले करवाता है कि आपको जो उसने देनी है चीजें वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें दे के उसमें
रेप्लिकेशंस करवाएगा कि आपको जो फाइल मिली है अगर आपने नेटवर्क पे शेयर करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। देखो, वर्म का एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि वर्म जो है डिफरेंट डिस्टेंट रिलेटेड फाइल्स को लेता है। जैसे वर्म का जो पार्ट है, वर्म का वायरस के साथ जो रिलेशन है वो ये है बेसिकली कि कंप्यूटर के अंदर जब वर्म एंटर करता है ना, वो मालवेयर को स्प्रेड करता है टू द अदर कंप्यूटर्स विदाउट द यूजर इंटरेक्शन, आपसे पूछे बिना ही। ऑटोमेटिकली जैसे आपने ग्रुप में डाली चीज तो ऑटोमेटिकली एंट्री करवाना शुरू कर देगा। सो ये एक्सप्लॉइट करता है वायरस को, वल्नरेबिलिटी। सो आपका जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको करता है, उनकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को उठाता है, आपकी करप्ट फाइल्स की सारी इंफॉर्मेशन उठाता है, इंस्टॉल बैकडोर जो आपने बैकअप रखा होता है उससे उठाता है। वॉर्म्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेमोरी जो आपकी होती है ना उसके ऊपर डील करता है। सो वॉर्म वायरस इंक्लूडेड होता है हमेशा। जो नेम है इसके वो है लवगेट एफ एंड ट्रायल अंडर द सी। सो सबसे बड़ा जो वायरस डिटेक्शन था जो हमारा वर्म के अंदर वो था ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो था उसने क्या किया था कि सब हैकर्स को अलाउ किया था कि रिमोट एक्सेस को टारगेट करना है। मींस बड़े वॉल्यूम में जो हैकर्स होते हैं, जो बड़े वॉल्यूम्स में सिस्टमेटिकली मेमोरीज हैं उनको अटैक करना है। वंस ट्रोजन अगर आपके सिस्टम में आ जाता है तो वो क्या करता है कि रिमोटली असेस करता है। जैसे आप इंटरनेट के ऊपर क्या काम कर रहे हो, किस किस के साथ डील करते हो, कैसी बैंडविड्थ को डील करते हो, जैसे बैंकिंग है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, मालवेयर है, स्टैंड्स हैं, जितने भी मलिशियस सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे ट्रोजन हॉर्स के अंदर अगर आ गया है तो वो सबको डिटेक्ट करेगा, मलिशियस प्रोग्राम्स को, तो उसके अंदर वो उसकी एंट्री कर लेता है। सो सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड जो कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे आप थर्ड पार्टी यूज करते हो यूपीआई सर्विसेज, इस तरह की कोई सर्विसेज, तो हर एक के ऊपर उसने अटैक करके आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। ये ट्रोजन हॉर्स का अपना काम है। जो वर्म इन्फेक्टेड है, वायरस इन्फेक्टेड भी है, वर्म इन्फेक्टेड भी है। एडवेयर है एक, एडवेयर जो है एडवर्टाइजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है। जैसे आप कोई एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है ना, ऑटोमेटिकली डिलीवर्स होती रहती है एडवर्टाइजमेंट, फ्री वर्जन आपको पॉपअप मिलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स के, वेबसाइट्स के ऊपर मिलते होंगे, आप खोलते हो तो उनको अगर आप मतलब क्लिक कर लेते हो तो आप बंडल ऑफ एक्टिविटीज में एंटर कर जाते हो, आपका आईपी एड्रेस बंडल ऑफ एक्टिविटीज में चला जाता है। तो एडवेयर क्या करता है फिर वायरस को और डिटेक्शन में डाल के उसमें वायरस बढ़ा देता है। स्पाईवेयर भी है एक। स्पाईवेयर जो है वो आपके प्रोग्राम काउंटर मींस आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स है उसके अंदर एंटर करता है, कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर वो एक बार एंटर कर गया तो उसने सीक्रेटली आपकी इंफॉर्मेशन को दे देना है। और जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है, मींस जिसके साथ आप ज्यादा डील करते हो, उसके पास आपका डाटा जाना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। जैसे कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं लोग, 360 डिग्री यूज कर लिया, ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ पे आप लोकेशन हमेशा ऑन रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली लोकेशन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में एंटर करती जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि टू वे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर लगाइए, टू वे पासवर्ड्स लगाइए ताकि इश्यूज कम आए। सो कुछ रैंसमवेयर भी हैं यहाँ पे। रैंसमवेयर जो होते हैं वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को होल्ड कर लेते हैं। जो डिमांड करते हो आप रेस्टोरेशन की या स्केयरवेयर की, तो आपने जैसे फोर्सफुली, मैंने अभी आपको बोला ना क्रिप्टो लोकर में आपने कोई पैसे लगाए हैं तो वो आपको बोलेगा कि पे लोड करो। आपने कोई, आपको लिंक आया, उसने बोला 500 रुपीज भेजो तो 5000 हो जाएंगे। आपने जैसे ही पेमेंट की तो उसने बोला कि देखो इंटरेस्ट और बढ़ चुका है, 5000 और पे करो तो आपको मैं 50,000 दे दूंगा। तो आपने उतने देने शुरू कर दिए। तो अटैचमेंट्स स्पैम मेल्स में आती रहती हैं, आप ड्रॉप करो, डाउनलोड करते हो, मालवेयर करते हो, तो ये चीजें शुरू हो जाती है। इसलिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जब भी कोई स्पैम मेल आती है, रीडायरेक्शन करने से पहले पहले कभी आरबीआई की साइट पे चेक करो कि क्या ऐसी कोई चीजें हैं। क्योंकि कभी भी आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो तो वहां पे बोलते हैं ना कि पैसा लगाने से पहले, आप जितना भी पैसा लगा रहे हो, ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई रैंसमवेयर अटैक्स हो सकते हैं, मालवेयर अटैक्स हो सकते हैं, अटैच्ड मेल्स आ सकती हैं, आप उनकी पकड़ में आ सकते हो। तो उसको रिमूव करने के लिए अलर्टनेस ज्यादा जरूरी। एंड शॉर्टकट वायरसेस जो होते हैं ना वो एवरीवेयर आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं और डिस्क की जो स्पेस होती है उसके ऊपर अटैक करते हैं। कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं। जब आप कोई इंटरनेट से रिलेटेड फाइल डाउनलोड करके उसमें रख देते हो ना, तो आप उसको काफ़ी देर यूज़ नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो
रेप्लिकेट होते रहते हैं और छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी फिर वो अटैक कर देते हैं। इफ इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओरिजिनल तो कोई इशू नहीं आता, अदरवाइज इश्यूज आते हैं। ईमेल वायरसेस में ऑलरेडी डिस्कस हुआ है आई लव यू जो वायरस है, वायरस वाले टॉपिक में, तो उसका लिंक मैंने ऑलरेडी बोला है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस पर से चेक कर लीजिएगा। ब्राउज़र जो हाईजैक करते हैं ज़्यादातर वो डिफ़ॉल्ट सर्च प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे आप बिना परमिशन के उसमें एंटर कर जाते हो ना, जैसे आपको किसी ने बोला कि ये ब्राउज़र बड़ा अच्छा है, जैसे कोई वेबसाइट्स हैं जो आपने पढ़ी मलिशियस है, आपको पता नहीं है, आपको लगा कि इसके ऊपर कोई ऑफर चल रहा है तो आप एंटर कर गए, बट डिवाइस एक रनिंग मोड में गया तो वहाँ एक लिंक आया, आपने लिंक प्रेस कर दिया तो किसी और पेज पे पहुंच गए। मैंने पहले भी एक बार एक वीडियो में बोला है कि आप जैसे गूगल का एक पेज खोलते हो तो ध्यान से देखना, आईपी एड्रेस गूगल के साथ स्लैश करके नेक्स्ट पेज खुलेगा, स्लैश करके नेक्स्ट पेज खुलेगा। सो आईपी एड्रेसेस ट्रैकिंग में होते हैं ऑलवेज ऑलवेज, तो और हाईजैकिंग को वो आपका मेजर पॉइंट मिल जाता है कि आप रीडायरेक्ट कहाँ से कर रहे हो। आप रोज एक चीज ओपन कर रहे हो तो आप नोट करना कि आपके हिस्ट्री पार्ट में वो चीज हमेशा अवेलेबल होगी, तो उन्हें वहां से एक हिंट मिलता रहता है रैनसमवेयर को कि आप कौन सी चीज को बार बार हिट करते हो। तो एप्लीकेशंस आपकी सारी की सारी अटैच है सारी ईमेल आईडी के साथ, तो उसके अंदर चीजें चली जाती है। अब ये बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड क्राइम है कि टूल बार यूज करनी लोगों को नहीं आती। अब ब्राउजर के ऊपर टूल बार्स भी अवेलेबल होती हैं जिसमें हिस्ट्री, डाउनलोड फीचर्स, रैनसमवेयर, मालवेयर ऑलवेज डिटेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वर्म्स और ट्रोजन्स ऑटोमेटिकली जो आपने डाउनलोडेड फाइल्स रखी हुई हैं, आपने रीडायरेक्ट की, आपने हिस्ट्री कभी डिलीट ही नहीं की, तो ऑटोमेटिकली वो क्रिमिनल केसेस के अंदर एंटर कर जाती है। बट अगर क्रिमिनल केस डिटेक्ट हो जाते हैं तो साइबर लॉ के लॉ भी हमारे पास अवेलेबल है। सो प्ले लिस्ट का लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगी साइबर सिक्योरिटी की, आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन से साइबर लॉ अवेलेबल है अगर ये अटैक डिफाइन हो जाते हैं तो अगर अटैक डिफाइन के बाहर आना है तो मालवेयर डिटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मालवेयर डिटेक्ट होता है तो हम बात करते हैं कि क्या क्या आइडेंटिफाई होता है कंप्यूटर सिस्टम में कि अफेक्टेड है या नहीं है। जो अगर तो मालवेयर है तो फ्रीक्वेंटली क्रैश होगा, मींस कि सिस्टम चलता चलता बंद होगा, सिस्टम स्लो हो जाएगा, ब्राउजर की स्पीड बहुत ज्यादा कई बार बढ़ जाएगी, कई बार बिल्कुल ही स्लो हो जाएगी, प्रोग्राम रनिंग आउट होंगे, सिस्टम को आप जैसे आपने आज रात को बंद किया, मॉर्निंग में एक दिन आपने चलाया नहीं चला, दोपहर को चलाया तो चल पड़ा ऑटोमेटिकली। ये हिंट है कि इसके अंदर मालवेयर एंटर हो चुका है। प्रॉपर बूटअप नहीं हुआ, किसी दिन हो गया किसी दिन नहीं हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली रनिंग पार्ट पे एंटर हो चुका है कि ईमेल ईमेल के जो मैसेजेस आपने ट्रैक किए थे तो आपने सिस्टम में रख लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अटैक हो चुका है। तो सीपीयू की यूजेज भी जो है वो कम होती है, स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, फाइल्स की टेंडेंसी शो नहीं करता आपको, बार बार क्रैश होना शुरू हो जाता है, तो ये एक साइन है फिगर के कि अटैक आपके सिस्टम के ऊपर हो चुका है। सो सेफ कैसे होना है इन अटैक से, अब उसकी बात करते हैं प्रिवेंशन कैसे लेनी है। प्रिवेंशन में आपने एंटिनी मालवेयर से बचने के लिए आपको जब सेव करना है इनको, तो एक्सटर्नल डिवाइस, पेन ड्राइव्स या सीडीज, यूएसबी केबल्स, या आप कैमरा की कोई भी केबल लगाते हो तो उसको ओपन करने से पहले पहले हमेशा एंटीवायरस से स्कैन करना है। एंटीवायरस की भी एक वीडियो आपको एज सुन एज पॉसिबल इसी लिंक पे मिलेगी चैनल पे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से एंटीवायरस होते हैं और किस तरह से आप उसको सिक्योर कर सकते हो। सो कभी भी कोई वाया मेल आपको अटैचमेंट आ रही है उसको ओपन करना है तब भी स्कैन करके, और कभी भी किसी अननोन सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करना जब तक आप रीडायरेक्ट उसकी मेन वेबसाइट से उसको नहीं करते। तो एंड मेक श्योर करना है कि जो विंडो फायरवॉल है वो हमेशा अनेबल हो। उसकी एनेबलमेंट की भी एक शॉर्ट वीडियो आपको इसी चैनल पे एज सुन एज पॉसिबल मिलेगी, उसको देख लीजिएगा। और हमेशा विंडो फायरवॉल को ओपन करना है वाइल असेसिंग इंटरनेट, जब भी आप इंटरनेट असेस करते हो। और लाइट वेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करोगे तो वो मालवेयर की छोटी छोटी बाइट्स एडवेयर क्लीनर कर देते हैं, बट अगर आप हैवी वेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो वो सीपीयू को स्लो भी कर सकते हैं। सो एंटीवायरस इस तरह से के यूज़ करने हैं कि जो सिक्योर्ड फीचर को एप्लीकेबल हो, तो उसके बारे में आपको एंटीवायरस की वीडियो में बताया जाएगा।
कॉल द कंप्यूटर एंड इंजीनियर इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट्स। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक सिर्फ इंजीनियर को बुला के कंप्यूटर दिखाइए, ताकि वो चेक कर पाए कि कोई हैक हुई है चीज़ या किसी वायरस ने सिर्फ अटैक किया है। और फुल सिस्टम स्कैन करो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। और जो आपकी टेम्प्रेरी फाइल्स होती हैं उसको भी डिलीट कीजिए ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अगर आपको डिलीट नहीं करनी आती तो आप हैश आप कोड चला सकते हो, या फिर आप अपने फाइल मैनेजर में जाके भी कर सकते हो। इसके स्टेप्स भी आपको एक वीडियो के थ्रू बना के शॉर्टर वीडियो में मैं इस चैनल पर डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा कि आपको टेम्परेरी फाइल्स को कैसे डिलीट करना होता है। सो फॉर द अलर्टनेस फीचर, साइबर सिक्योरिटी हमेशा कहती है कि अलर्ट रहिए, इंट्रूडर पे कभी भी भरोसा नहीं करना, कोई गलत चीज़ डाउनलोड नहीं करनी, विदाउट स्कैनिंग नहीं करनी, अननोन सॉफ्टवेयर को एंटर नहीं कराना। एंड इफ यू हैव any question regarding any part, kindly comment into the comment box. The reply will be given very soon on this channel. Till then, take care and thank you.